Today we will start physics, but before starting physics, we have to be familiar with the fundamentals of physics. We can say vocabulary of physics. बेटा फिजिक्स एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੋਕੈਬ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਫਿਜ਼ਿਸਿਸਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੋਕੈਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਰੱਟਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਤੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾਗਾ 10 to the ਪਾਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ 10 raised to the power 1 2 3 4 ਜਾਂ -1 -2 -3 -4 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 10 raised to the power -1 ਦੀ 10 raised to the power -16 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟੀ ਡੈਸੀ ਕਿਲੋ ਮੈਗਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਸ 10 ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪਾਵਰ ਮਤਲਬ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 2 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 3 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 4 -1 -2 -3 ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ 10 ਪਾਵਰ 0 ਇਸ ਕਮ ਟੂ ਵੀ 1 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਤੇ ਖੜਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੇ ਖੜਾ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਪਾਵਰ -1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 1/10 ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਇਹਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣੂ 0.1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 0.1 ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਆਪਣਾ ਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਲਡ ਡੈਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਈ ਸਮਾਲ ਡੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਮਾਲ ਡੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਸਮਾਲ ਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਰ ਵਾਈ ਸਮਾਲ ਡੀ ਵਾਈ ਨਾਟ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਵਾਈ ਨਾਟ ਅਲਫਾ ਵਾਈ ਨਾਟ ਬੀਟਾ ਵਾਈ ਨਾਟ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸ ਵਾਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ 10 ਪਾਵਰ -2 is 1/100 0.01 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ it is called centi it is denoted by small c 10 power -3 it is 1/1000 it is 0.001 called milli denoted by small m ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ small m ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ small m ਨਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ small m ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ MILLI ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ then 10 power -6 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 1/1 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਜ਼ੀਰੋ ਮਤਲਬ 0.12345 then 1 0.000001 it is called micro micro is denoted by mu ਇਹ mu ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖੂਗਾ ਨਾ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ then let us suppose ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 10 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ 10 raised to power -6 ਮੀਟਰ because this thing is micro ठीक है 10 into ਜੇ ਉਹ ਲਿਖੂ 1 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊ 1 into 10 power -6 ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 10 power -6 ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸੈਂਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 10 power -2 ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 1 into 10 power -2 meter comes to be 0.01 meter ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਆਊਗੀ 10 power 1 it is called deca it is called deca and deca is denoted by small d small a deca is denoted by small d and small a it means 10 10 power 2 means 10 into 10 मतलब 100 it is called hecta denoted by small h ठीक है जी 10 power 3 it is 1000 called kilo ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1000 k small k ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਸ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ
ठीक है। फीफा 2K19 उत्थे K का मतलब कदे सोचिया तुसीं भी की आ ओहदा, वो K का मतलब आ 1000, 2019 K's another name for 1000, जिमें H is 100 is another name for hecta, ठीक है उस तरह। नेक्स्ट 10⁶, इट इज कॉल्ड मेगा, इट इज कॉल्ड मेगा, मेगा डिनोटेड बाय कैपिटल M, इट मीन 10 लाख, 10 लाख इज कॉल्ड 1 मेगा, दैट इज। तो बेटा इन्हां दे जिहड़े नाम ने, ये नाम ने जिहड़े ये तुसीं सिंबल एवें याद रखने ने, क्यों रखने ने, बिकॉज फ्रांस दे विच बेटा एक इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन बहंदी आ जिहदे विच बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने जिहड़े ये गल्लां डिस्कस करते हैं भी आपां वेट जिहड़ा मैजरमेंट आ जां कोई भी मैजरमेंट आ उहदे लई सिंबल की रखीए, तो कदे भी एक सिंबल दूजे सिंबल नाल मैच नहीं करूगा। जे आपां कहिए भी किलो स्मॉल के आ, तुसीं कहो सर आपां कैपिटल के क्यों नहीं रखिया, बेटा कैपिटल के याद करो आपां साइंस दे विच किहनूं दित्ता होया, कैल्विन नूं दित्ता होयागा। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्मॉल सी है, आपां कैपिटल सी नहीं रखिया, क्यों नहीं रखिया, क्योंकि कैपिटल सी जिहड़ा सिंबल है वो आपां किहनूं दित्ता होया, वो आपां बेटा दित्ता होयागा सैल्सीयस नूं दित्ता होयागा। तो इस तरह नाल साइंस के जिन्ने भी सिंबल ने वो चाहे तुसीं इंडिया च पढ़ रहे हो, चाहे अमेरिका च पढ़ रहे हो, चाहे ब्रिटेन च पढ़ रहे हो, चाहे नॉर्वे च पढ़ रहे हो, किते मर्जी पढ़ रहे हो, वो सारिਆਂ ਦਾ सिंबल ने जिहड़े वो कॉन्स्टेंट रहणगे, बिकॉज साइंस इज यूनीवर्सल फिनोमिना एंड उस पूरे यूनीवर्स ते साइंस के सिंबल की रहे ने सेम रहणगे। क्यों, क्योंकि वो डिसाइडेड ने, किहदे द्वारा डिसाइडेड ने, फ्रेंच दे विच एक कौंसल बैठदी है जिहदा नाम है बेटा कॉन्फ्रेंसे जनरले डेस पेओडिस एट मेजरेसिस, ठीक है, जिहदा इंग्लिश दे विच मतलब है जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। ये कौंसल बैठदी है तो कौंसल उत्थे डिसाइड करदी है भी तुसीं किस तरह नाल मतलब किहड़े सिंबल देने ने, किहड़े वेट नूं, किहड़ी लेंथ नूं, किहड़े साइंटिफिक आइडेंटिटी नूं, ठीक है। तो सिंबल एज इट इज तुसीं याद रखने होंदे ने। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है साइंस दे विच, ये हल्का जा मतलब यू कैन से इट इज़ हल्का जा क्रैमिंग है ये, ठीक है, बट ये बेसिक है, दिस इज बेसिक। तो जे तुहानूं ये नहीं आउंदा होऊगा तो तुसीं उलझे फिरी जाओगे टिल यूअर ग्रैजुएशन, जे तुसीं साइंस लैण लई उतावले हो भी तुसीं साइंस लैणी आ। नैक्सट आपां अगे गल करांगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर ऑफ 10। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं क्वेश्चन पा रहा, आई वांट टू मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। देखो मैं इहनूं पहला एक्सटेंडेड फॉर्म दे विच करके दिखाउणा तुहानूं। ये की होऊगा, ये असल च कुछ नहीं होऊगा, ये 1 दे नाल 6 जीरो, इधर 1 दे नाल 8 जीरो, कम्स टू बी की आ जाऊगा 1 दे नाल कितनियां जीरो आउणगियां, आपां छोटी क्लासां च करदे हां, सारियां जीरो इकट्ठियां हो जाणगियां, 14 जीरो। It comes to be 10 to the power 6 into 10 to the power 8 comes to be 10 to the power 14। ये एवें लिखना हुंदा। हुण जे आपां ऐ जीरो 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 पाई जाइए तो कई न्यूमेरिकल है जो हुंदे ने जिन्हां दे उत्ते 10 to the power 24 आ जांदा, इहदा फिर अपना सारा कुछ जीरो नाल ही भर जा करूगा, तां ही आपां शॉर्ट फॉर्म यूज़ करदे हां, ठीक है जी। असल दे विच की हो रहा, बेस सेम है, ये मैथमैटिक्स है, फंडामेंटल मैथमैटिक्स। बेस सेम हुंदा जदों मल्टीप्लिकेशन विच हुंदी आ तां जिहड़ियां पावर्स हुंदियां ने वो की हो जांदियां ने पुत्तर जी, ऐड हो जांदियां ने, आपां नूं पता, तां ये फंडामेंटल मैथमैटिक्स है। हुण मैथमैटिक्स साइंस क्यों यूज़ होंदी है, मैथमैटिक्स फिजिक्स क्यों यूज़ होंदी है, बिकॉज बेटा मैथमैटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, और यू कैन से मैथमैटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनीवर्स, ठीक है। ये तुसीं बड़े होकर पता लगू तुहानूं भी मैथमैटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट आ। तुसीं कुछ भी करदे हो, अज आपां मैं तुहाडे नाल गल कर रहा, आपां ऑनलाइन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इहदे विच भी मैथमैटिक्स के फार्मूलेशनस लगते हैं, एंड वो तुसीं जदों हाईयर क्लासिस च होगे ना, एक चैप्टर आऊगा डबल डेरीवेटिव्स डिफरेंशियल्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਮੇਜ਼ਡ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵਾਈਫਾਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, 10 to the power -6 into 10 to the power 8 ਕਰ ਰਿਹਾ मैं। ਇਹਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣੂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ 1/1 2 3 4 5 6 into 1 into 1 2 3 4 5 6 7 8 6 जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे, यू विल कम टू बी 100, मतलब 10 to the power 2। बेटा किमें आया,
देखो मैं थोनू फिर उही गल कहा, बेस सेम ने तो पावर की हो जाएगियां ऐड, तुसीं कहोगे सर ऐड होणगियां, फिर हाँ जी -6 + 8 फंडामेंटल मैथमैटिक्स है। -6 + 8 का आंसर की आऊगा बेटा +2, दैट कम्स टू बी 10⁻²। पर जे मैं सेम चीज़ दे विच +6 - 8 करदा, इहदा आंसर तुसीं मैनूं कढ के दोगे, मैं नहीं तुहानूं दूंगा। वट वुड बी द आंसर? 10 पावर कितनी आऊगी? ये मेरा तुसीं लैक्चर दे विच अपना ग्रुप दे विच सेंड कर देना भी सर साडा आंसर ये है, जिन्हों नहीं पता लगूगा फिर मैं दोबारा करा दूंगा, नैक्सट लैक्चर दे विच करा दांगे। नैक्सट आ गया बेटा दोनों की पावर माइनस दे विच गल करते हैं आपां। 10⁻⁴ × 10⁻⁻6 ये की एक्चुअल च की है, ये है 10⁻⁻4 का मतलब है ये, इंटू 10⁻⁻6 का मतलब है आंसर क्या होगा 1/10 zeros, मतलब 1/10⁻10 और यू कैन से 10⁻⁻10। जो 1 करके करोगे तो वह यह मतलब बनता है, ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं 10⁻⁻4 + -6 माइनस प्लस कम्स टू बी माइनस, तो बेटा -4 - 6 द आंसर वुड बी -10, ठीक है जी। जो दोनों माइनस के होण तो दोनों ऐड हो जाते हैं, बट साइन किहदा रह जाता माइनस का, ठीक है। ये चलो मैं थोनू ठीक है, माइनस का साइन रह गया, जिहदा साइन वड्डा होगा आंसर दे उही साइन लगूगा। मैं थोनू हिंट देता जिहड़ा क्वेश्चन मैं थोनू पायागा वो देख लियो, ठीक है। तो ये चीज़ां बहुत खास ख्याल रखना इन्हां चीज़ों का। नैक्सट वी विल मूव टू, दो शब्द ने बेटा, एक शब्द आ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल, एक शब्द है डायरैक्टली रिलेटेड और डायरैक्टली प्रोपोर्शनल। इन्हां दा की मतलब बनता बेटा? डायरैक्टली प्रोपोर्शनल सब तो पहला तो यह चीज़ समझो भी डायरैक्ट का मतलब की होंदा। डायरैक्ट का मतलब होंदा सिद्धम सिद्धा, सीधा सीधा रिलेशन दो आइडेंटिटीज़ दे विच, सीधा सीधा रिलेशन टू आइडेंटिटीज़ दे विच इज कॉल्ड डायरैक्टली प्रोपोर्शनल। आइडेंटिटीज़ हमेशा टू ही होणगियां। फॉर एग्जाम्पल जे एक चीज़ वध रही है तो दूजी चीज़ भी वधूगी। जे मान लो ए वध रहा गा तो बी का वधना उहदे हिसाब नाल इट इज कॉल्ड डायरैक्ट रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल अज दी आपां एग्जाम्पल लैना, करोना केस किन्ने इनक्रीज हो रहे हैं, जिमें जिमें करोना केस इनक्रीज हो जाते हैं थोनू डेंजर ज़्यादा फील होंदा ना। तो नंबर ऑफ कोरोना केसेस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन आ बेटा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल दा, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंजर। जे नंबर ऑफ कोरोना केसेस इनक्रीज होणगे तो डेंजर भी की होगा पुत्र जी, इनक्रीज होगा। ऑब्वियसली जे नंबर ऑफ कोरोना केसेस डिक्रीज होणगे तो डेंजर भी की होगा, डिक्रीज होगा। आपां नूं सेफ फील होने लगूगा, ठीक है। इहदा मतलब है डायरैक्टली, तो यह सिंबल है एवें डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जिहड़ियां आइडेंटिटीज़ ने वो दोनों एक दूजे के सामने लिखियां जांदियां ने, एक दूजे के सामने लिखियां जांदियां ने। इफ ए इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इहदा मतलब की आ भी जे ए वधूगा तो बी भी वधूगा। तो ये याद रखना है, माइंड च रखना है, टिल ग्रैजुएशन तक काम आऊगा साइंस के स्टूडेंट्स नूं। नैक्सट इज अनदर वोकैब कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूजा वोकैब की है पुत्र जी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी बेटा दो आइडेंटिटीज़ होणगियां जिहड़ियां एक दूजे नाल रिलेटेड होणगियां, पर इस तरह नाल रिलेटेड होणगियां जे एक आइडेंटिटी वधूगी तो दूसरी आइडेंटिटी की होगी घटूगी। फॉर एग्जाम्पल ए वध रहा उहदे हिसाब नाल जिहड़ा बी आ वो डिक्रीज कर रहा, तो इट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहा हैप्पीनेस इज प्रोपोर्शनल, बट हाउ प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स का मतलब 1 अपॉन लेना,
मैथ पढ़िया हो तुसीं, मैथ तुसीं कहने होंगे इनवर्स नंबर की है, इनवर्स नंबर आ 1 लै लेना, किसी चीज़ का रेसिप्रोकल हो जाना वह इनवर्स हो जाता है ना। तो हैप्पीनैस इज प्रोपोर्शनल बट इन विच रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैडनैस। जे हैप्पीनैस वधूगी तो सैडनैस घटूगी, है कि नहीं। जे हैप्पीनैस घटूगी तो सैडनैस वधूगी। ਇਹਦਾ मतलब बेटा दिस इज इनवर्स रिलेशन, ਇਹਨੂੰ कहने ਆਪਾਂ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ इस तरह की आइडेंटिटी ਹੋਵੇ भी एक चीज़ इनक्रीज करे तो दूजी चीज़ डिक्रीज करे, एक चीज़ डिक्रीज करे तो दूजी चीज़ इनक्रीज करे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इत्थे मैं कहूँगा A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, A उपर रखा जाऊगा, B दे नाल 1/B किया जाऊ, इट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हुण बेटा डायरैक्ट तो इनवर्स प्रोपोर्शन दे विच मतलब पता लग गया, समझ आ गया। जे मैं थोड़े एक क्वेश्चन पूछा, सरफेस एरिया इज डैश प्रोपोर्शनल टू इवैपोरेशन, ਇਹਦਾ आंसर दसो की आऊगा, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आप लास्ट चैप्टर च किया होया, ठीक है। तो यदा आंसर आपके माइंड च देखो, जे तो थोनों ये आंसर देना आ गया, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, ਇਹਦਾ मतलब भी थोनों कंसैप्ट समझ आ गया, ठीक है बेटा। नैक्सट की गल करते हैं आप, कुछ शब्द ने बेटा ਜਿਹੜੇ 9th ਤੇ 10th ਦੇ ਕਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਊਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਊਗਾ ਫਾਈਨਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ फाइनल वेलोसिटी और फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हुण बेटा जिहड़ा इनीशियल आ ना, ये साइंस वालियां ने पक्का रखा हुआ भी इनीशियल चीज़ नूं यू नाल डिनोट करना, इनीशियल चीज़ नूं किहदे नाल डिनोट करना, स्मॉल यू। जे इनीशियल वेलोसिटी आ तां स्मॉल यू, इनीशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ तां स्मॉल यू। फाइनल नूं साइंस वालियां ने पक्का रखा हुआ भी वी नाल डिनोट करना, किहदे नाल डिनोट करना, स्मॉल वी, ठीक है। ए स्मॉल वी इस तरह एक होर भी है, वो वेलोसिटी हुंदी है, वो एवें हुंदी है, इन्हां दोनों च फर्क है, ठीक है बेटा। यू ते वी, इनीशियल यू है, फाइनल वी है। एक शब्द आऊगा ओरिजिन, ओरिजिन की होगा बेटा, जिथों सारा कुछ स्टार्ट होंदा। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन की मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिना, थोड़ी सारी दुनिया कित्थों स्टार्ट हो रही है, थोड़े घर तो, थोड़ी सारी दुनिया थोड़े घर तो स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा घर थोड़ी लाइफ लिए की है बेटा जी, ओरिजिन है। योर हाउस इज ओरिजिन फॉर योर लाइफ, या फिर यू कैन से योर मदर फादर आर ओरिजिन ऑफ योर लाइफ, है ना। जिथों कोई भी चीज़ स्टार्ट होंदी है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, जिथे तक वो शुरुआती, जिथे तक वो चली जाती है दैट इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट। ओरिजिन कुछ भी हो सकता तो फाइनल पॉइंट भी कुछ हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप केस डिस्कस करते हैं, तुसीं आपदे घर तो स्कूल तक गए, तो जिहड़ा तुहाडा घर सीगा इहनूं तुसीं इनीशियल पॉइंट भी कह सकते हो, इहनूं तुसीं ओरिजिन भी कह सकते हो, ठीक है। वो तुहाडे ते डिपेंड करता भी तुसीं घर नूं किस तरह नाल देख रहे हो, शुरुआती भी कह सकते हो ते मुड भी कह सकते हो, दोनों चों कुछ भी कह सकते हो। ओरिजिन का मतलब हुंदा मुड मतलब जमी बिल्कुल शुरुआती, उन्होंने शुरुआती या मुड कह सकते हो। घर स्कूल नूं की कहोगे, फाइनल, स्कूल नूं की कहोगे, फाइनल पोजीशन या फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इनीशियल ते फाइनल शब्द समझ आ गए बेटा। नैक्सट एक शब्द है लीस्ट काउंट, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड लीस्ट काउंट। बेटा काउंट का मतलब थोनों पता है, एक फीलिंग आती है गिणती की, आप कहने काउंटिंग कर लो, गिणती कर लो जी, गिण लो किसी चीज़ को। लीस्ट घट्टो घट गिणती, लीस्ट का मतलब होंदा घट्टो घट, तो घट्टो घट गिणती इहदा मतलब है लीस्ट काउंट। मिनीमम काउंट नूं आपां लीस्ट काउंट कहने हैं। ये की च आउंदा, ये कित्थे आउंदा, स्केल देखिया तुसीं, स्केल दे विच इस तरह का होंदा ना स्केल,
इत्थे लिखा होंदा 0, उरे लिखा होंदा 1 2, इत्थे लिखा नहीं होंदा, लाइन्स होंदियां ने, आ वड्डी होंदी आ 5वीं, इत्थे 1 लिखा होंदा ना, एवं मैं अगे कह दिना। इत्थे 2 लिखा होगा, इत्थे 3 लिखा होगा। बेटा 0 तो 1 दे विच कितनियां डिवीजनस ने? 10 डिवीजनस ने। कितनियां डिवीजनस ने? 10 डिवीजन ने ना। जे 0 तो लैके 1 दे तक 10 डिवीजन ने तो 1 डिवीजन की कितनी वैल्यू आ? दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी है? इनू आपां लीस्ट काउंट कहने आ। समझ आ रही है गल? जे मैं कहा मैं लाइन इत्थे तक मारती, उरों मैं शुरू करती तो मैं लाइन मारती इत्थे तक, तो यू कैन से, तुसीं कहोगे जी ये सेंटीमीटर स्केल है, तो ये लाइन है 1.5 सेंटीमीटर। थोनू 1 सेंटीमीटर का मैनू उरे तक पता लग गया भी ठीक है 1 सेंटीमीटर, दैट्स ओके। 0.5 किवें पता लग गया थोनू? 0.0 इत्थे तुसीं 0.05 क्यों नहीं कहा मैनू? 0.5 क्यों कहा? इहदा रीजन है, इहदा रीजन है लीस्ट काउंट। देखो बेटा 10 डिवीजन पिछ एक रीडिंग दे पिछे कितनियां डिवीजनस ने? 10 डिवीजन, या फिर यू कैन से 10 डिवीजन्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 डिवीजन इज इक्वल टू, सीधा यूनिटरी मैथड है थोड़ा, 1/10 सेंटीमीटर कम्स टू बी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इत्थे तक तो 1 सेंटीमीटर पूरा हो गया, इस तक। इदों अगे 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, तां करके आपां उरे 1.5 की गल की है। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। मिनिमम रेटिंग एक डिवीजन दी इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। इहदा फार्मूला की हुंदा? इहदा फार्मूला तुसीं ऐ नहीं भी 0 to 1 च ही कढना, तुसीं इह च भी कर सकते हो 1 to 2 च। फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। देखो हुण जे मैं कहा मेरा स्केल टुटिया होया, मेरा स्केल की होया बेटा? टुटिया होया, मैनू लीस्ट काउंट कड्ढण नूं कह देणो आ टुटिया है जी। ठीक है, मूरे है नहीं, 0 है ही नहीं, सीधा 2 तो शुरू हो रहा, लीस्ट काउंट किया। हुण मैं कहूँगा जी ठीक है, फाइनल रीडिंग मैं मान ली 3, इनिशियल रीडिंग की है 2, डिवीजन कितनियां ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन ने। दैट इज 3 - 2/10। अगेन लीस्ट काउंट तो सेम ही रहा ना, 0.1 1/10। ठीक है बेटा, तो इस तरह नाल तुसीं लीस्ट काउंट कट सकते हो। ये थोड़ी 9th 10th दोनों चीज़ां चाहूगा। 9th दे विच ये लीस्ट काउंट आउंदा स्केल दे उते, ते 10th दे विच ना आपां वोल्ट मीटर ते यू कैन से एमीटर यूज़ करांगे, उन्हां दे विच बहुत कड्ढण दा होंदा इनू। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कड्ढना ही पैंदा जे तुसीं एक्चुअल रीडिंग देखनी होवे। तो बेटा थैंक यू, ये सी अपने फंडामेंट्स ऑफ फिजिक्स। तो इस बाद आपां चैप्टर स्टार्ट करांगे फिजिक्स के फॉर 9th क्लास एंड 10th क्लास। इन्हां चीज़ों को अपने माइंड 'च इस तरह ना फिक्स कर देना, जिवें तुहानूं पता भी रोटी नूं रोटी कहना, कुर्सी नूं कुर्सी कहना, उवें ये चीज़ां अपने माइंड दे विच तुसीं की कर लेने पुत्तर जी, फिक्स कर लेनियां ने। थैंक यू।